Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our dear listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am your anchor Sarabjit Kaur. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi urges every citizen to make vocal for local a life mantra. India's electronics exports surged by over 47% in first quarter of current fiscal, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And foreign investors pump in nearly 4,500 crore rupees into the Indian debt markets so far in August. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर नागरिक वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% से अधिक की वृद्धि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया। और अगस्त में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। Subodh, let's look at the first big story of the day. Ji. Prime Minister Narendra Modi today made a strong push for vocal for local and urged people to buy products made in India. He said this while inaugurating two major national highway projects worth around 11,000 crore rupees in New Delhi. Prime Minister urged that vocal for local should become a life mantra for every citizen. He remarked that this mission is not difficult for the nation, as India has always delivered whenever it has taken a resolution. Citing the example of Khadi, which was once on the verge of extinction, PM Modi recalled his appeal to the nation, which led to a collective resolve and visible results. He informed that in the past decade, Khadi sales have increased nearly sevenfold. He noted that the people of India embraced Khadi with the spirit of vocal for local. The Prime Minister further highlighted the trust shown by citizens in Made in India mobile phones. Recalling that a decade ago, even toys were being imported into India, Mr. Modi said, when Indians resolved to embrace vocal for local, not only did domestic toy production increase significantly, but India also began exporting toys to over 100 countries worldwide. And Subodh, I can see Chandrakant, our first caller, has joined in from Hyderabad. Chandrakant, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकांत सोलंकी है। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी। मेरे को इंडेक्स फंड के बारे में जानना है। मेरा प्रश्न ये है कि इंडेक्स फंड में मेरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करूं या लमसम करूं? दूसरा प्रश्न ये है कि हर एक कंपनी एक ही टाइप का रिटर्न देगी या डिफरेंट रिटर्न देगी, ये जानना है। जी, चंद्रकांत जी, जो आपका सवाल है कि आप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। पैसिव फंड्स की खासियत ये रहती है कि वो एक कुछ भी
अलग चीज नहीं कर रहे होते हैं, रादर देन दे आर फॉलोइंग जिस इंडेक्स पे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम निफ्टी 50 लेते हैं, जो हमारे विश्व की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियो बनता है, जिन्हें हम निफ्टी 50 कहते हैं। तो अब कोई भी एएमसी का निफ्टी 50 फंड होगा, वो इन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो रिटर्न्स सिवाय एक्सपेंस रेशियो के और जितने अच्छे से वो ट्रैक कर पा रहे हैं उस इंडेक्स को, रिटर्न्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। और इसी कारणवश हम कहते हैं कि आप किसी भी एएमसी के 2 इंडेक्स फंड्स चूज कर सकते हैं। जो आपका सवाल है कि आप एसआईपी के माध्यम से करें या लमसम के माध्यम से करें, तो जब आपका अंडरलाइंग इक्विटी होता है, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फर्क कोई नहीं रहता, चाहे आप एक्टिव में हो चाहे आप पैसिव में हो। इन्वेस्टमेंट माध्यम आपका एसआईपी ही रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहते हैं। उसको एवरेज आउट करने के लिए एसआईपी ही सूटेबल रहता है। और 1 लाख रुपए को कितने इंस्टॉलमेंट में करना चाहिए? 1 लाख रुपए को आप 10 महीने में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना काफी रहना चाहिए। जी, अगले कॉलर हैं अमित मुंबई से। स्वागत है आपका, सवाल पूछें अमित। यस सर, थैंक यू। मैं अमित बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज बैकग्राउंड में? नहीं ना? जी बताएं। मेरे सवाल 2 है, प्राथमिक है कि मल्टी कैप फंड और हाइब्रिड फंड में डिफरेंस क्या है, ये स्नेहा जी से सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारा गोल कैसे करें। फिलहाल तो मुझे सपोज अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो मार्केट तो चढ़ा उतार चलता रहता है, तो मैं कब बेच सकता हूँ म्यूचुअल फंड? सपोज 3 साल 5 साल हो गए हैं, तो बेचने की जो टाइमिंग है वो कैसे डिसाइड करें? थैंक यू जी। अमित जी, जो आपका पहला सवाल है मल्टी कैप और हाइब्रिड फंड्स में क्या अंतर है, उनमें सबसे बड़ा अंतर ये रह जाता है कि हाइब्रिड फंड्स आपको 30-35% डेट एक्सपोजर दे रहे होते हैं, और जो मल्टी कैप है वो आपको 100% इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर दे रहे होते हैं। दैट इज वाई जो टर्म आ जाता है हाइब्रिड, 2 चीजों का मिक्स, तो यहाँ पे इक्विटी और डेट का मिक्स आ जाता है। अलग अलग टाइप के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उनमें फर्क यही रहता है कि ये जो मिक्स के एसेट एलोकेशन का परसेंटेज होता है वही है जो डिफर करता है। मल्टी कैप फंड्स आपको एक ही पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सबका परसेंटेज एलोकेशन दे देते हैं, बट ये इक्विटी मार्केट का ही एक्सपोजर देते हैं आपको। तो ये डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। और हाइब्रिड फंड्स को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ इक्विटी कुछ डेट में डालते हैं, और इनका इक्विटी मोस्टली थोड़ा थोड़ा आपको लार्ज मिड स्मॉल का एक्सपोजर दे देता है। जो आपका सवाल है कि सेल को मतलब सेल कब करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो आप जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपका जो एक गोल है वो बस यही है कि आप कुछ पूंजी बचा पाएं ताकि आगे के लिए वो आपको काम आ पाए जब जरूरत हो, तो बेसिकली आप वेल्थ अप्रिसिएशन आपका गोल बन जाता है। तो ऐसे टाइप के गोल के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप तब तक पैसे ना निकालें जब तक आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में जो सरप्लस पड़ा हुआ है आप उससे अपने एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर लेते हैं, तो आप इस पोर्टफोलियो को एसआईपी के माध्यम से लंबे समय के लिए चलते रहने दे सकते हैं। और जो आपने मेंशन करा कि स्टॉक्स के उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, तो ये जो उतार चढ़ाव है जब आप इसको टाइम देते हैं तब आपको जो रिटर्न मिलता है वो काफी अच्छी फीलिंग देता है। तो जब तक आपको इसकी जरूरत नहीं है आप इसको ना निकालिए। तो स्नेहा, हम कई एक्सपर्ट से सुनते हैं कि अगर जैसे अगले 12 महीने बाद अगर कोई आवश्यकता है और आज आपको लगता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल भी लेना चाहिए। बिल्कुल, जब आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है, तो ये जो 12 महीने या 1-1.5 साल का गैप कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज जो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम बस चाह रहे होते हैं कि जैसे पैसे लगाते हैं इंस्टॉलमेंट में, वैसे इंस्टॉलमेंट में निकाल भी ले। सरबजीत, अगले कॉलर के पास चले। जी, नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली। वी हैव वीर फ्रॉम दिल्ली। वीर, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा म्यूचुअल फंड है, इसमें जो इसका पोर्टफोलियो है, इसमें एक तो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप है और एक स्मॉल कैप है। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ क्या ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो माना जाएगा? मेरा हॉरिजन है 5 से 10 साल या इवन इट कैन बी बियॉन्ड दैट। तो एक तो मेरा ये है, मतलब ये क्या ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ एडिशन अल्टरेशन करनी है, तो एक्सपर्ट से मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि सजेस्ट करें। प्लस सेकंड क्वेश्चन इज क्या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में
फर्क है या क्या ये एक ही चीज है? दैट्स ऑल, थैंक यू। जी वीर जी, जो आपका पहला सवाल है, आपके पास जो कैटेगरीज के फंड्स है, लार्ज एंड मिड और फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप, जिस टाइप का होराइजन आप एम कर रहे हैं इवन बियॉन्ड 10 इयर्स, उसके साथ ये पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है। लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे देता है, जिससे आप अपना कोर ऑफ द पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और जो स्मॉल कैप है वो एक सैटेलाइट की तरह काम करता है कि अगर वहां रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा रहता है। आई होप आप इनमें एसआईपी के माध्यम से कंटिन्यूटी रखेंगे जब तक आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आई होप आप इस इक्विटी ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो के साथ एक कुछ प्रतिशत डेट एलोकेशन अपने पास रखते हैं, क्योंकि एक एसेट एलोकेशन लंबे समय में काफी काम आता है। कभी अगर आपको लगता है कि आप इक्विटी में अभी और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट में आपके पास वो पड़ा रहता है, आप उसको और अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। ये एसेट एलोकेशन के बारे में आप जरा ध्यान रखिएगा अपने इस लंबे समय के लिए। जो आपका प्रश्न है दूसरा कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में फर्क होता है या ये सेम होते हैं, तो अगर मैं सेबी की डेफिनेशन से जाती हूँ तो इनमें फर्क ये रहता है कि फ्लेक्सी कैप, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक फंड मैनेजर जो हमारा स्टॉक्स का यूनिवर्स है उसमें से लार्ज मिड स्मॉल कोई भी टाइप की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मल्टी कैप में एक पाबंदी आ जाती है कि उसको 1/4 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डालना ही होता है और बाकी का जो 25% बच जाता है वो फंड मैनेजर की कॉल हो जाती है। उस 25% के लिए वो एक तरीके का फ्लेक्सी कैप बन जाता है। तो आज के टाइम पे इनमें फर्क ये रह रहा है कि फ्लेक्सी कैप इतने बड़े हो चुके हैं कि वो लार्ज कैप डोमिनेंट पोर्टफोलियोज बन गए हैं, एंड मल्टी कैप बिकॉज वो बाय मैंडेट लार्ज मिड स्मॉल आपको आज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो थोड़े ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं। जी, अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से भरत, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, good evening. You see, I have been maintaining my mutual funds and shares portfolio on valueresearchonline.com. So recently they've upgraded their system, and earlier when I was maintaining the portfolio, it was without the folio numbers. So now they've upgraded the system and they are asking me to send an email through CAMS with an attachment of all the exhaustive data on my funds, mutual funds. जी, आप उनकी वेबसाइट के हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं, वहां से ही आपको जानकारी मिल पाएगी। हम मार्केट मंत्र में इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं अजय के पास। अजय प्रयागराज से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय जी, अपना सवाल पूछिए। जी, आप सभी मार्केट मंत्रा के सदस्यों को नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि हेलो। हाँ जी, बताइए। सवाल सर ये है कि मैंने एक IDCW डिविडेंड फंड ले रखा था करीब 18 महीने पहले, तो कास्ट वैल्यू से सर मार्केट वैल्यू इस समय बहुत उसकी डाउन है, तो क्या उसमें इस समय पैसे और इन्वेस्ट करने में लगाने में क्या हमको डिविडेंड कुछ बढ़ के मिल सकता है? ऐसा होता है क्या सर? अजय जी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप IDCW प्लान्स में ना इन्वेस्ट करके ग्रोथ प्लान्स में इन्वेस्ट करिएगा। डिविडेंड्स जो ये IDCW प्लान्स रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के, इनमें AMC पे डिपेंड करता है कि वो कब आपको डिविडेंड दे ना दे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे दे और किस अमाउंट पे दे। तो यहाँ पर ये एक तरीके की अनसर्टेनिटी रहती है। इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप किसी फंड के ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करिए, और अगर आप ये एक रेगुलर कैश विड्रॉल करना चाह रहे हैं फ्रॉम अ फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप SW के माध्यम से उस फंड को कह सकते हैं कि मुझे इस तिथि पे इतना अमाउंट आप हर बार दे दीजिए। जो भी फ्रीक्वेंसी आप चूज करें, मंथली, क्वार्टरली, जो भी वो फंड प्रोवाइड करता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से प्रेमचंद, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, म्यूचुअल फंड में अगर कोई जाना चाहता है और उसको जानकारी नहीं है, तो बैंक वाले भी कहते हैं म्यूचुअल फंड देते हैं, हमारे पास बास्केट है, तो ये समझने का हमें नहीं समझ पाते ये क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से इसकी जानकारी ली जाए जो ठीक समय पे म्यूचुअल फंड में लगाया जाए। बेटे की मेरी एज है 27,
तो वो इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता है और उसका लगभग उसकी कुछ एफडियां हैं अभी जब मैच्योर हो जाएंगी, तो क्या आप हमें राय दें कि म्यूचुअल फंड में जाएं या किस ढंग से लगाएं, बैंक के थ्रू लगाएं या एफडी वगैरह में ही बने रहें, और इसके लिए थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जी प्रेमचंद जी, अगर आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका होराइजन लंबा है, मान लीजिए 5 years एंड बियॉन्ड, तो बिल्कुल वो इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर उनको लेना चाहिए, बिकॉज वही आपको आगे जाके इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो जो आपके जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर स्टार्टर्स वो इंडेक्स फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि ये जानकारी कहाँ से मिले, तो एम्फी जो हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट है amphi.in, वहां पे हर कैटेगरी हर फंड के बारे में जानकारी मिल सकती है, उनके पोर्टफोलियोज भी मिल सकते हैं। बाकी आजकल ऑनलाइन माध्यम में आपको किसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो भी देख सकते हैं। अगर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो इन्वेस्ट खुद से करने में भरोसा अभी नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल वो बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस भी अकाउंट में उनका खाता है वहां पे जाके वो मेंशन कर सकते हैं कि निफ्टी 50 के लेट्स से 2 इंडेक्स फंड्स फॉर स्टार्टर्स में आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब भी आप किसी और के हवाले अपने पैसे करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो आगे लगवाएं, तो ध्यान बस यही देना चाहिए कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको वही दे रहे हैं। बैंक अपने टारगेट्स मीट करने के लिए आपको कोई और प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहा है, तो आप ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। और योगेश जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। योगेश जी अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। मेरे 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि कोई भी हम देखते हैं नया एनएफओ आता है, नया म्यूचुअल फंड आता है, तो उसका एनएवी 10 रुपए से ही स्टार्ट किया जाता है। इसका क्या कारण है? क्या कोई लकी नंबर है या कुछ कैलकुलेशन का हेरफेर है कि 10 रुपए से ही एनएवी स्टार्ट होती है? दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे गया है और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, तो सही महीने में आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है आज की डेट में? जी तो योगेश जी, जो आपका पहला सवाल है कि ये 10 रुपए से स्टार्ट होता है, तो ये एक लोअर इनिशियल प्राइस होता है जो कभी भी कोई फंड लिस्ट मतलब ऑफर करा जाता है तो उसका एक बेस प्राइस ये बनाया जाता है। इसमें मतलब आई डोंट थिंक सो कुछ लक की बात इन्वॉल्व है। लक टाइम और आपके पेशेंस से ही आता है, तो आप उस पे जरूर अपना फोकस रखिएगा। जो दूसरा आप पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये हो जाता है कि जब आप जो इतना हार्ड अर्न मनी अर्न कर रहे हैं, अगर आप उस मनी को एक ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करें कि आप चैन की नींद सो पाते हैं। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसे आपके पास, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है पैसे मांगने के लिए, लोन नहीं लेना पड़ता है, आपके पैसे आपके लिए खुद वो काम और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मतलब पर्सनल लेवल पे वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा, और वो अचीव करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है, क्योंकि एक फंड में आपको कम से कम 30 से 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। आप 500 रुपए या फिर आजकल 250 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक एसआईपी करना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मुश्किल से एक्सपेंसेस ही खर्च कर पा रहे हैं और कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी अगर 250 रुपए आप निकाल के उसे 10 साल इन्वेस्ट करते रहेंगे किसी अच्छे 2 फंड्स में, तो टाइम विल गिव यू टाइम विल सरप्राइज यू कि जिस टाइप का रिटर्न आप बिल्ड कर पाते हैं। Sneha, I believe our next caller is from Ghaziabad. Gaurav joins us. Gaurav जी अपना सवाल पूछिए। Good evening, Market Mantra team. जी, good evening. Madam, what is CAGR and what CAGR level should be considered now? Earlier people used to say, assume 12% का example देते थे, तो क्या अभी उसे हमें we should be lower it down to certain percentage and what percentage? And second question is ICICI Prudential Equity and Debt Fund versus ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. In current scenario, for say 5-year period, for a conservative investor, which fund would be better? मुझे लगता है कि equity and debt would be better than balanced advantage. What is your opinion, ma'am? Thank you. Right. So, Gaurav, taking your first question first, what is CAGR? It basically gives you the return at a point in time. Let's say if you had invested in 2020
August 2020 and we are now in August 25. So a 5-year CAGR would be the value that of your investment at that time versus today. So what kind of return that you would have generated on an annual basis is what CAGR provides you with. The 12% expectation that you mentioned, it is merely how historically, let's say, an equity dominated portfolio would have provided you, even a Sensex index fund would have provided you. That 12% is actually based on what history tells us. And it is nice to, sort of build your expectation on that. But I would say when you're invested in equity, over a short period, let's say we invest without any expectation first, because market itself will and time itself, as I was mentioning to another user, will help you achieve that. There can be times, let's say if you've built your portfolio with heavy on mid and small cap, that portfolio can actually generate a CAGR of higher than 12%. So it actually depends on what kind of portfolio you've built, but a base level expectation of 12% is what history suggests us. Secondly, the two funds that you were comparing, one ICICI Equity and Debt, which is an aggressive hybrid fund, and another which is the Balance Advantage Fund. On an average, equity and debt fund will provide you with an asset allocation of 65 to 35 equity and debt, while Balance Advantage might provide you a 40-50 kind of an allocation to equity and debt. So the difference, I would say, for a conservative investor lies here that if he or she wants to take a higher allocation to debt, in that case, the dynamic asset allocation funds, or also known as IPRU Balance Advantage Fund, should be suitable for a 50-50 kind of an asset allocation if that is the need you are wanting to fulfill. Otherwise, aggressive hybrid also works fine. चलिए अगली खबर पे नजर डालते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 31 अरब डॉलर से बढ़कर 133 अरब डॉलर्स हो गया है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इससे भारत में मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की संख्या 300 से अधिक हो गई, जबकि 2014 में इनकी संख्या महज 2 थी। उन्होंने कहा कि भारत अब मोबाइल आयातक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। श्री गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा हुए हैं। अगली खबर है, अगस्त में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में 4,469 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 अगस्त के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 20,975 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले जुलाई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 17,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली थी। जून में उन्होंने भारतीय शेयरों में 14,590 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं मई में उन्होंने 19,860 करोड़ रुपए डाले थे, जो इस साल भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। एंड प्रीतम जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। प्रीतम जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मार्केट मेकर टीम को। जी नमस्कार। मैडम, मैं ये पता करना चाह रहा था कि अभी आपके जो विशेषज्ञ आए हुए उनसे बात हो रही थी, करीब 250 रुपये अगर हम SIP करते हैं करीब 10 साल के आसपास तक या 10 साल के ऊपर भी, तो हमें अच्छी खासी रकम मिल सकती है। लेकिन हम उसका अकाउंट हम कैसे चेक कर पाएंगे हमारे अकाउंट में क्या पैसे हैं या क्या अमाउंट है? SIP को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपको सबसे बढ़िया जरिया जो इन्वेस्टर्स के पास आज के टाइम पे अवेलेबल है वो MFC की वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड सेंट्रल, जहां पे आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, और MFC आपके जितने भी फंड्स आपने कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करा हुआ है, कहीं पे अभी करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एक विंडो पे आपको पूरा दिखा देता है इंपोर्ट करके कि अभी आप कहाँ पे इन्वेस्टेड है, कितना आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, उनकी कितनी करंट वैल्यू है। ये आपका सवाल एकदम इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम अगर अपने पैसे बस ब्लाइंडली डाले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि किस टाइप की बढ़ोतरी उसमें हो रही है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लो हो जाता है कि पैसे बस कटे जा रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टेड है, क्या स्टेटस है। तो स्टेटस चेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। MFC की वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती है।
Well, Sneha, that's a great piece of advice. Moving on to the next news item on the table today. After snapping 6 weeks of losing streak last week, domestic markets are likely to focus on domestic and global market triggers like GST reforms announced by Prime Minister Narendra Modi and the Trump-Putin meeting in Alaska. Indian markets will also keep an eye on US Fed minutes, developments around Trump's tariffs on India, favorable monsoons and Indian inflation hitting a record low. Last week, the Sensex gained 740 points or 0.9% to close at 80,598 on Thursday. The Nifty rose 268 points or 1.1% to end at 24,631. आज वक्त इतना ही है। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges every citizen to make vocal for local a life mantra. India's electronics exports surged by over 47% in first quarter of current fiscal, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And foreign investors pump in nearly 4,500 crore rupees into the Indian debt markets so far in August. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra, Market Mantra.